براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ فیٹی لیور کے حوالے سے ہے۔ فیٹی لیور سے مراد یہ ہے کہ جگر پر چربی، جس کو عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تو علم ہی ہے کہ جگر جو ہے وہ جسم کا دوسرا بڑا عضو ہے۔ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق غذائی اجزاء کو پروسیس کرنے میں مدد کرتا ہے اور خون سے مضر مادوں کو فلٹر کرتا ہے۔ جگر میں بہت زیادہ چربی جمع ہونا جگر کی سوزش کا سبب بن سکتی ہے، جو جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور داغ یعنی فائبروسس پیدا کر سکتی ہے۔ شدید قسم کے معاملات میں یہ داغ جگر کی خرابی کا باعث بن کر سائروسس کا باعث بن سکتے ہیں۔ سائروسس جو ہے نا، لیور سورائسس، یہ ایک اور خطرناک قسم کا مرض ہے جو فیٹی لیور کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی بہت زیادہ شراب پینے والے میں فیٹی لیور کی نشو نما ہوتی ہے تو اسے الکوہل فیٹی لیور کہا جاتا ہے، جسے AFLD کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب فوری طور پر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ AFLD تو جو ہے وہ لوگ ہیں جو زیادہ شراب پیتے ہیں، ان کو فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ تو اب جو نہیں پیتے ہیں تو ان کو کیا ہم کہیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ NAFLD، اس مرض کو ہم NAFLD کے نام سے بولتے ہیں، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز۔ یعنی جب آپ کے پاس کوئی ایسا تشخیص آئے ڈاکٹر کی یا کوئی نسخہ آئے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہو کہ NAFLD، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ شراب پینے کے بغیر اس کا جو ہے نا لیور فیٹی ہوا ہے۔ اور اگر آ جائے کہ AFLD ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الکوہلک فیٹی لیور ہے، کہ الکوہل کے پینے کی وجہ سے اس کو فیٹی لیور کی ڈیزیز ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ الکوہل ہے، شراب نوشی ہے، جس کی وجہ سے لیور فیٹی ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے، باقی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیٹی لیور جو ہے وہ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد موسٹلی آج کل جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جی فیٹی لیور، اور کوئی مرض نکلے نہ نکلے، بے شک وہ کڈنی کا الٹرا ساؤنڈ کروانے گیا ہوا ہے یا ویسے ہی سٹامک کا الٹرا ساؤنڈ کروانے گیا ہے تو فیٹی لیور لازمی لکھ دیتے ہیں۔ اب فیٹی لیور جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کون سی علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک عام آج کل کامن مرض کے طور پر چل نکلا ہے۔ تو وہ اس کی کون سی علامات ہے جس سے ہمیں بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بھی پتہ چل جائے کہ ہمارا جگر کہیں فیٹی تو نہیں ہے۔ شروع میں فیٹی لیور کی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی، لیکن تھکاوٹ یا پیٹ کے اوپر دائیں جانب، یہ جو دائیں سائیڈ ہے، اس کے اوپر درد کا احساس اور بوجھ سا محسوس ہوتا رہتا ہے، تو یہ فیٹی لیور کی پہلی ابتدائی علامت ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری والے کچھ افراد میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں جگر کے داغ بھی شامل ہیں۔ جگر کے داغ کو جگر کے فائبروسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر شدید جگر کی فائبروسس ہے تو اسے سائروسس کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی سائروسس جو ہے وہ جگر کی اگلی شدید کنڈیشن ہے جس کو ہم جانتے ہیں۔ اس حوالے سے سائروسس کی وجہ سے جو علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں اس میں بھوک میں کمی، وزن میں کمی، کمزوری، تھکاوٹ، ناک سے خون آنا، جلد کی کھجلی، پیلے رنگ کی جلد، اور اس کے علاوہ جلد کے نیچے خون کی باریک نالیوں کے نشانات بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی لیور سورائسس کی علامت ہے جو فیٹی لیور کے بعد ہوتی ہے شروع۔ اور پیٹ کا درد، پیٹ میں سوجن، پیٹ میں پھر پانی پڑ جانا، یہ اگلی شدید حالت میں پھر پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ ٹانگوں پر سوجن، آپ اس طرح کی سوجن ہوتی ہے کہ آپ ایسے دبا کر دیکھیں تو وہاں پہ گڑا پڑتا ہے، یعنی اوڈیما ہو جاتا ہے۔ مردوں میں چھاتیوں کا بڑھ جانا، جو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا کہ گائنوکمیسٹیا، ظاہر ہے لیور جو ہے نا وہ ہمارے بہت سارے ہارمونز بناتا ہے۔ اب وہ ہارمونز جب فیٹی لیور ہوتا ہے تو اس میں اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر کا فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں میں گائنوکمیسٹیا کا مسئلہ بن جاتا ہے، یعنی مردوں کی چھاتیاں بھی عورتوں کی طرح بڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ الجھاؤ، کنفیوژن، ٹینشن، ڈپریشن،
انزائٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فیٹی لیور میں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کے وہ سمٹمز تھے جو فیٹی لیور میں آ سکتے ہیں سامنے ہمارے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات میں یہ ہے کہ جب جسم بہت زیادہ چربی پیدا کرتا ہے یا چربی کو مؤثر طریقے سے ہضم نہیں کر لیتا تو جگر فیٹی ہو جاتا ہے۔ زیادہ چربی جگر کے خلیوں میں جمع ہوتی ہے اور فیٹی لیور کی بیماری کا سبب بنتی ہے۔ چربی کا یہ مرض طرح طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر بہت زیادہ شراب پینا، جس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک شراب کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک بغیر شراب پیے ہوتا ہے۔ اور ایسے افراد میں جو شراب نہیں پیتے، ان میں بھی فیٹی لیور کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں۔ مثلا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایسی غذائیں کھانا جو بلغمی مزاج کی ہوں، یا نشاستہ دار غذائیں زیادہ کھانا، اور موٹاپا بھی فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، مستقل جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ بھی فیٹی لیور کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان کا جو ہے وہ انسولین کی وجہ سے بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، کیونکہ انسولین جو ہے وہ گلوکوز کی ریزسٹنس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فیٹی لیور کا باعث بنتی ہے۔ خون میں چربی کی سطح بلند ہو جائے، یعنی ایچ ڈی ایل، ایل ڈی ایل، الکلائن فاسفیٹ، یہ جو مقداریں ہیں ہمارے کولیسٹرول کی، یہ بڑھ جائیں، اگر آپ کو ٹیسٹ میں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیٹی لیور ہے۔ خون میں ٹرائی گلائسرائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ بھی فیٹی لیور کی علامت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ جگر کا ٹیسٹ کروا کے آئیں، تو اس میں ٹیسٹ میں جو لپڈ پروفائل ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ایل ڈی ایل ہوتا ہے، ایک ایچ ڈی ایل ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ٹرائی گلائسرائڈ ہوتا ہے۔ اگر ٹرائی گلائسرائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جگر پر بہت زیادہ چربی ہے۔ جگر میں چربی کی کچھ کم اہم وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مثلا حمل کے دوران بھی جگر پر چربی ہو سکتی ہے، تیزی سے وزن میں اس وقت کمی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فیٹی لیور ہے، اور یا کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا ویٹ کم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ فیٹی لیور کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے ویٹ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہیپاٹائٹس اے، بی، سی جتنے بھی ہیں یہ بھی فیٹی لیور کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایلوپیتھی کی مختلف قسم کی ادویات جو کھائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی فیٹی لیور ہو جاتا ہے، خاص طور پر میتھوٹریکسیٹ جو ہے یہ میڈیسن بھی، یا ٹیماکسوفن ہے، یہ عام طور پر اینٹی کینسر میڈیسن ہے، تو یہ کھانے سے بھی ہو جاتا ہے جو فیٹی لیور کا مسئلہ۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جن سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ خاص نمایاں ہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے خاندان میں بھی فیٹی لیور ہوتا ہے کہ جینز میں ہی وہ چیز چلی آ رہی ہے، مثلا موٹاپا ہی ہے، اگر والد کو ہے، والدہ کو ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو ہے اور آگے اولاد کو بھی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے فیٹی لیور کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب دیکھا جائے تو فیٹی لیور کی اگر ہم تشخیص کرنا چاہیں، ڈائگنوز کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو فیٹی لیور کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو معالج اس کی ہسٹری لیتا ہے۔ ہسٹری میں وہ پوری چیزیں پوچھتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے، کھاتا پیتا کیا ہے، پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ الکوہل کا یوز کتنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو لٹا کر بیڈ کے اوپر تو وہ اس کا معائنہ کرتا ہے۔ معائنہ کرنے میں سب سے پہلے ڈاکٹر جو ہے یہ پسلیوں کے نیچے رائٹ سائڈ پر اپنا ہاتھ رکھ کے تو دبا کر دیکھتا ہے، اور اگر اس کو وہاں پہ جگر کا سائز بڑا نظر آ رہا ہے تو پھر وہ مزید یہ دیکھتا ہے کہ کہیں پیٹ میں پانی تو نہیں ہے۔ پانی کو پیٹ میں دیکھنے کے لیے وہ الگ سے اس طریقے سے ہاتھ رکھ کے اوپر ایسے دباؤ دے کے تو ایسے اپنے انگوٹھے سے یا اپنی یہ انگلی سے دیکھتا ہے، تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے ساؤنڈ سے کہ پانی ہے۔ ویسے بھی پیٹ ابھرا ہوا ہے تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص جگہ سے اگر پیٹ ابھرا ہوا ہے تو پیٹ میں پانی ہے۔ یہ ایک سیویئر کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کی آنکھوں کا معائنہ کرتا ہے، اس میں اگر پلاہٹ ہے تو اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی سکن کا معائنہ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی ٹانگوں پہ، پاؤں پہ دیکھتا ہے سویلنگ تو نہیں ہے۔ اپنی انگلی سے دبا کر دیکھنے سے اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فیٹی لیور کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر معالج کو یہ شبہ ہو کہ یہ فیٹی لیور ہے تو پھر اس سے وہ اس کی خاندانی ہسٹری پوچھتا ہے، جگر کی کوئی بیماری تو نہیں، اس چیز کی ہسٹری پوچھتا ہے۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کبھی الکوہل کا استعمال بہت زیادہ تو نہیں کیا، یا دیگر کوئی نشہ، سموکنگ ہے،
नस्वार है, गुड्डा है, क्या जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो तो नहीं कर रहे, या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहे जो मुश्किल आप ले रहे हो एलोपैथी की जिसकी वजह से ये मसला हो। फिर उससे वो उसके तर्ज ज़िंदगी के बारे में पूछता है कि हाँ भी उठते कब हो, सोते कब हो, कितनी वॉक करते हो, और आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किस तरह का है, बैठे रहने वाला है या खड़े होकर चलने फिरने वाला काम है, या कोई ऐसी आपको बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी तिब्बी कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बन रहा है। और इसके अलावा अगर उसको थकावट है, भूख में कमी है और इस तरह की दूसरी अगर अलामात उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत से नज़र आ रही हैं, तो फिर उसको वो जो है ना वो जिगर की सोजिश को जानने के लिए वो फिर ऐसे करते हैं कि कुछ टेस्ट रिकमेंड कर देता है डॉक्टर जो है। तो उसमें बहुत सारे मामलात में फैटी लिवर की बीमारी की तशखीस खून के टेस्ट के ज़रिए से हो जाती है, जिसमें खून के एंजाइम जो हैं वो हमें पता चलता है उनसे कि भी ये क्या इसको फैटी लिवर है या नहीं। अच्छा, उसमें जो एंजाइम्स में है वो सबसे पहले एक एंजाइम है जिसको ALT के नाम से जाना जाता है। ये एंजाइम अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि फैटी लिवर है। या दूसरे एक एंजाइम होते हैं AST। आप जब लिवर का टेस्ट करवाते हैं तो ALT और AST आमतौर पर उसमें लिवर के एंजाइम बताए होते हैं। आप इन अगर एंजाइम को देखें, उनकी वैल्यू अगर बहुत बड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि पेशेंट फैटी लिवर है। ये चीज़ें आप ज़रूर नोट करें। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट आती है, कोई लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा के आता है और वो आपके सामने रिपोर्ट रख देता है और साथ ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बताएं मुझे क्या मसला है, तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाए कि इसको ये प्रॉब्लम है। अगर जिगर के एंजाइम पे ये टेस्ट मुस्बत हैं तो मुआलज सोजिश की वजह की निशानदेही करने के लिए अजाफी तिब्बी हिस्ट्री लेता है, जिस्मानी मुआयना करता है और इसके अलावा उसको मजीद कोई एक दो टेस्टों के लिए कह सकता है। अगर मुआलिज को शुबा हो कि फैटी लिवर है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों जो है वो पूछ सकता है कि भाई आपको इससे पहले कभी कौन कौन सी बीमारियां रही हैं, कोई जो है शुगर तो नहीं है, या आपको कोई अल्लाह ना करे पहले कोई लाइपोमा, कोई कैंसर, कोई इस तरह के प्रॉब्लम तो नहीं थे, या उसकी फिजिकल कंडीशन को देखता है कि इसको कोई गाइनोकेमिस्ट्रिया की तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर उसको कोई शदीद हालत नजर आए तो फिर उसके अल्ट्रासाउंड के लिए भी कहता है कि जी आप अपना USG ऑफ लिवर ये वो लिख कर देता है कि ये करवाएं। अगर मजीद कोई कंडीशन खराब नजर आए तो उसको CT स्कैन का रिकमेंड करता है, या फिर उसको MRI के लिए भी कह देता है कि भाई आप अपना टेस्ट जो है ना MRI करवा के लाएं। तो इसके जिगर के ये जो टेस्ट हैं, इनके अलावा भी डॉक्टर जो है जिगर वाली जगह पर दबा कर देखे तो वहां पे अगर उसको सख्ती महसूस हो रही है तो और उसकी पेशेंट की हालत कुछ ज्यादा ही खराब नजर आ रही है तो फिर डॉक्टर जो है वो जिगर की बायोप्सी के लिए भी कह सकता है। जिगर की बायोप्सी एक तकलीफदेह टेस्ट होता है और वो आमतौर पर उस वक्त ही करवाया जाता है कि जब आपको शक है कि खुदा न खास्ता जिगर इतना डैमेज तो नहीं हो रहा है कि वो उसको कैंसर हो गया है, या जिगर जो है वो खाया जा रहा है, गल रहा है, जल रहा है, तो उसकी वजह से फिर उसको बायोप्सी के लिए कहा जाता है। बायोप्सी के लिए ज़ाहिर है कि एक मखसूस किस्म की जो है इंजेक्शन के ज़रिए से वहाँ से टिश्यू जो है वो निकाले जाते हैं, जिगर का कुछ पीस निकाला जाता है, वो निकाल के फिर लेबॉर्ट्री में उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद ये पता चलता है कि आया खुदा न खास्ता जिगर में कोई कैंसर का मसला तो नहीं है। तो डॉक्टर को अगर शक हो तो वो ये टेस्ट करवा सकता है। लेकिन देखना यह है कि अगर किसी को फैटी लिवर है या नहीं है तो उसको ग़िज़ाएं कौन सी खानी चाहिए। आमतौर पर आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो फौरी तौर पर ये पूछता है, दवाई आपसे ले ली है, चेकअप करवा लिया है, कि डॉक्टर साहब मैनू कोई परहेज तो नहीं। अब जब ये पूछता है कि मैंने खाना क्या है क्या नहीं खाना है, तो आप एक मुआलिज हैं, आपने उसको अच्छे तरीके से पूरा गाइड करना है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आपको फैटी लिवर शुरू हो गया हुआ है, पेशेंट को ये बताएं, तो फिर आप ये करें कि ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो पौधों पर मबनी हो, जो आपको पौधों से हासिल हुई हो, नबातात से हासिल हुई हो, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, मुख्तलिफ किस्म की फलियां हैं, और जितने किस्म का अनाज है वो सारा खा सकते हैं। खाना क्या नहीं है, अब वो पूछता है कि जी ये चीज़ें तो खाने वाली होगी, तो जो नहीं खानी है वो क्या है। उसको कहें कि मिठाइयाँ नहीं खानी है,
سفید چاول نہیں کھانے ہیں، مٹھائی کے علاوہ سفید چاول بھی منع ہے، اور سفید روٹی یعنی یہ جو ہماری ملوں کا آٹا ہوتا ہے جس میں سے ساری جو ہوتا ہے وہ چھان وغیرہ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بغیر ہوتا ہے، تو وہ نہیں کھانا ہے۔ پروسیس شدہ اناج نہیں کھانا ہے جس کو مطلب ابال کے دوبارہ اس کی کوئی چیز بنائی گئی ہوتی ہے نا، اس کو ابال کے خشک کر کے بنا لیتے ہیں، وہ چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ اچھا، سیچوریٹڈ چربی کو محدود کر دینا ہے، جیسے سرخ گوشت ہے یہ بھی بالکل نہیں لینا ہے، اور جانوروں کی تقریباً تمام مصنوعات جو جانوروں سے حاصل ہوتی ہیں کوشش کرنی ہے کہ وہ نہ کھائی جائیں، اور یہ جتنے بھی شراب سے بالکل پرہیز کیا جائے، اور وزن کم کرنے کے لیے ایسی غذائیں لی جائیں جن میں کیلوریز تو کم ہو لیکن پیٹ بھر جائے، ایسی چیزیں جن سے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن اس میں کیلوریز کم ہیں وہ چیزیں لی جائیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ جو فائبر جن میں زیادہ ہوتا ہے، مثلا چھلکا اسبگول ہے، یہ جو کچی سبزیاں ہیں، بند گوبھی ہے، کھیرے ہیں، ٹماٹر ہیں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں ان سے آپ اپنا پیٹ تو بھر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو جو کیلوریز ہیں وہ کم ملتی ہے۔ جب جتنی کیلوریز کم ملیں گی اتنا آپ کو جو ہے نا فیٹی لیور کے خدشات کم ہوں گے۔ اچھا، عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم اس کا گھر میں بھی کوئی علاج کر سکتے ہیں یا اس سے تحفظ ہو سکتا ہے فیٹی لیور میں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیٹی لیور والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف سٹائل میں تبدیلی لائیں۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے جو ملا کھانا شروع کر دیا۔ آپ اپنا جو ہے وہ ٹائم مقرر کریں کہ میں نے اتنے بجے کھانا کھانا ہے، اور اس میں بھی آپ وہ چیز کھائیں جس میں کم سے کم کیلوریز ہیں۔ اچھا، اور شراب اگر خدا نخواستہ آپ پی رہے ہیں تو اس کو فوری طور پر بند کر دیں، اور کوئی نشہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی فوری بند کریں۔ وزن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا وزن اگر زیادہ ہے تو فیٹی لیور کے چانسز زیادہ ہیں۔ غذائیت سے بھرپور غذائیں کھائیں جو چربی سے پاک ہوں، یعنی جس میں چربی والی چیزیں نہ ہوں، چکنائی والی چیزیں نہ ہوں۔ کم از کم ہفتے میں آپ 7 دن نہیں ہے تو 5 دن تو ایزیلی آپ کر سکتے ہیں، تو 5 دن 30 منٹ کے لیے ورزش ضرور کریں۔ وٹامن ای خاص طور پر جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھے ہیں جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے، تو وٹامن ای کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ فیٹی لیور کی وجہ سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فیٹی لیور حمل کے دوران میں ہے تو اس میں بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں، بیبی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے فیٹی لیور والی خواتین کو چاہیے کہ وہ پہلے فیٹی لیور کا علاج کریں، پھر اس کے بعد کنسیو کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر الکوہل والے لوگ ہیں تو ان کا جگر کا کینسر کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ الکوہل جو ہے اس کو فوری طور پر بند کر دیں۔ اب دیکھا جائے تو فیٹی لیور مختلف اس کے درجات ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک تو ہے جو پہلا درجہ ہے وہ ہے کہ سادہ فیٹی لیور۔ یہ جگر میں اضافی چربی ہوتی ہے، یہ عام طور پر اس کو سیریس نہیں لیا جاتا، اس کو سٹیوسس کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ پہلا درجہ ہوتا ہے، اور اس کو ڈاکٹر تقریباً جو ہے سٹیوسس کو صرف فیٹی لیور لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے درجے میں فائبروسس ہوتا ہے۔ فائبروسس میں یہ ہے کہ جگر پر ورم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جگر جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر جو ہے تھوڑا سیریس لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سائروسس ہوتا ہے، اور سائروسس جو ہے یہ بعض دفعہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ سائروسس جو ہے وہ جگر کے فیلئر کا باعث بھی بن سکتا ہے، تو یہ جگر کا چوتھا درجہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ لیور ٹرانسپلانٹ کروانا پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو ہمیں جب ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یا تشخیص کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ یہ لیور سوریسس ہے، تو اس کو ہمیں سیریس لے کر اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکے۔ جب تک اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو اس وقت تک یہ جو جگر کا مسئلہ ہے، لیور سوریسس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کو آپ کہیں کہ ہوم ریمیڈی سے
घरेलू टोटकों से या परहेजों से ये ठीक हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इस स्टेज में आकर भी उसको ये कहना चाहिए कि आप चीनी का कम इस्तेमाल करें और शराब नोशी को बिल्कुल तर्क कर दें और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। ये वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो लिवर की मेडिसिन है, तो हम उस पर आते हैं कि लिवर की कौन कौन सी होम्योपैथिक में मेडिसिन है। देखिए, होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इसका इलाज किया जाता है और होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह जिगर की तमाम किस्म की बीमारियों का इलाज मौजूद है। इसके लिए ये है कि सिर्फ हमें उसकी तशखीस, डायग्नोज और उसकी स्टेज का पता हो कि किस स्टेज में है, तो उसके बाद अगर हम इलाज करना शुरू करें तो अल्लाह के फजल से जिगर का बेहतरीन इलाज जो है वो हो जाता है। तो इसके लिए ख़ास तौर पर होम्योपैथी में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं फैटी लिवर के लिए, वो मैं आपको चंद जो अहम मेडिसिन है वो बता देता हूँ। बाकी ये है कि उसके जिगर के मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करवा कर HDL है, LDL है, ट्राइग्लाइसराइड है, इस तरह के टेस्टों के बाद जो है वो हम उसकी डिटेल से दवाइयाँ जो है वो उसके सिम्टम्स के मुताबिक ले सकते हैं। तो फैटी लिवर में सबसे पहली मेडिसिन जो हम देते हैं वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन दवाई है। लाइकोपोडियम में जिगर का वरम, जिगर का दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट के निचले हिस्से में जो है वो गैस का जमाव, और इसके अलावा दाएं तरफ पसलियों के नीचे दर्द, बहुत भूख लेकिन 2-4 लुकमे खाने से ही पेट भर जाता है, और लाइकोपोडियम में पेट के निचले हिस्से में गैस जमा रहती है और मरीज गर्म खाना और पीने को पसंद करता है, मिठाई खाने की इसमें बहुत ख्वाहिश होती है। इसके अलावा एलियम स्टाइवा है। एलियम स्टाइवा जो है जिगर की चर्बी की इब्तदाई दवा है। जब सबसे पहले आपके पास कोई फैटी लिवर का डायग्नोज हो जाता है तो उसके में आप उसको, अगर उसका इब्तदाई दर्जा है तो उसको एलियम स्टाइवा मदर टिंचर में देना शुरू कर दें। 15 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम पानी में मिलाकर दें, नीम गर्म पानी में दें तो और ज़्यादा असर होता है। जिगर और खून में हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये बेहतरीन दवाई है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी इससे हैरतअंगेज तौर पर ठीक किया जा सकता है। इन मरीजों में जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल है, गोश्त की ज़्यादा मकदार में खाने का नतीजा इसमें आज कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने का जो है ना वो एलियम स्टाइवा से किया जाए तो बेहतरीन हो जाता है। अंतड़ियों की बलगमी सोजिश में ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। इसके अलावा आरोमेट है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए एक सबसे बेहतरीन दवाई है। मदर टिंचर में नहीं, ये 30 में देनी है। लाइकोपोडियम भी 30 में या 200 में दे सकते हैं आप। जहाँ हाई ब्लड प्रेशर मौजूद है और वहाँ पे आरोमेट में ख़ास तौर पर खुदकुशी का रुझान होता है, मरीज जो है वो आपे से बाहर हो जाता है और वो चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, तो ऐसे मरीजों के लिए जो है आरोमेट फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करती है। ये मरीज ज़िंदगी से बेजार होते हैं, खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और इसकी वजह से जो है ना वो फैटी लिवर हो जाता है। अच्छा, आमतौर पर अल्फा को समझा दिया जाता है कि ये मोटापे की मेडिसिन है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्फा बहुत अच्छी मेडिसिन है फैटी लिवर के लिए भी। ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं और उनको फैटी लिवर है, आपने देखा होगा कि जिस्म पर कोई गोश्त पोस्ट नहीं है और वो बेचारे जो है ना, और डॉक्टर ने बताया कि इनका जो है वो ब्लड बहुत गाढ़ा है, और ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें जो फैटी लिवर होता है उसमें अल्फा बड़ा अच्छा काम करती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करने के लिए ये दवाई बड़ी अच्छी है। 5-5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर के पिलाए जाएं तो इससे फैटी लिवर कंट्रोल हो जाता है। ये ताकत की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और इसके अलावा एक मेडिसिन है एवना स्टाइवा। एवना स्टाइवा भी ताकत की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये नशेई लोगों को जो फैटी लिवर होता है, ख़ास तौर पर ये जो हीरोइन का नशा करने वाले, अफीम का नशा करने वाले या जो अपना शराब का नशा करते हैं, उनको फैटी लिवर होता है। तो एक तो ये नशे को भी छुड़ाती है, दूसरी यही चीज़ यह है कि ये फैटी लिवर को भी ठीक करती है, उनकी ये कमज़ोरी को भी दूर करती है। आप देखे होंगे कई लोग कि उनके हाथ कांप रहे हैं और कमज़ोरी से नशा कर करके, लेकिन यह है कि उनका जब टेस्ट किया जाए तो वो फैटी लिवर होता है। उसकी वजह क्या है कि खून के अंदर से इतना पानी वो सक कर लिया जाता है कि चर्बी रह जाती है, और वो फिर इसकी वजह से खून में चर्बी ज़्यादा होने की वजह से वो लिवर पर जमना शुरू हो जाती है और वो फैटी लिवर हो जाता है।
ब्राइटा म्योर है मेडिसिन, ये 30 में हम देते हैं आमतौर पर। तो ये बुजुर्ग अफराद के लिए बेहतरीन होम्योपैथी की दवा है जहां पे हाई कोलेस्ट्रोल पाया जाता है। शरियानों की दीवारों की सख्ती और दिमागी तकलीफ पैदा हो जाती है, चक्कर आते हैं, कानों में शोर होता है, शां शां की आवाजें आती हैं, नब्ज का तनाव बढ़ जाता है, टेनाइटिस जिसको हम कहते हैं ना, कानों में जो घंटियां बजती हैं, इस तरह की जो अलामात हों तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से बर्बरस वल्गरस, ये आमतौर पर तो ये समझा जाता है कि बाएं तरफ के गुर्दे की दवाई है, हालांकि ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ये बवासीर की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ये पित्ते की पथरी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, दोनों गुर्दों की पथरी की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, और इसके अलावा स्टमक की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, और जिगर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। जिगर फैटी हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, जिसमें ये सुफरा को जिगर से निकाल कर जिगर को बिल्कुल साफ कर देती है और फैटी लिवर ठीक हो जाता है। ये जो बर्बेरस वल्गरस है ये मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन देखना यह है कि अगर उसको बीपी हाई रहता है तो फिर इसके ड्रॉप्स कुछ कम देने हैं, डोज थोड़ी सी शुरू करना है। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो फिर उसको आप 15 ड्रॉप्स तक भी दे सकते हैं। इसी तरह से कलकेरिया कार्ब है, ये 30 में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मोटे चर्बी वाले लोग मरीजों में ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवाई है। लेकिन इन मरीजों की भी खास खसूसियत होती है कलकेरिया कार्ब की। एक तो यह है कि इनको उबले हुए अंडे बड़े पसंद होते हैं। ये लोग बड़े मोटे होते हैं, पुलपले होते हैं, लेकिन उबला हुआ अंडा कहीं इनको नजर आ जाए इनकी जान जाती है, और एक एक टाइम में ये 6-6, 7-7 अंडे आराम से खा जाते हैं और इनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता वो अंडे खाने से। दूसरा यह है कि ये इनके अंदर ना मुख्तलिफ अजीबोगरीब किस्म की चीजें खाने की ख्वाहिश होती है, जैसे चाक है, मट्टी है, और इसके अलावा चावल कच्चे या वो चीजें जो पेट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये वो खाने के में बड़ी दिल ख्वाहिश होती है। और इनको आमतौर पर ये पेशानी पर पसीना बहुत आता है, सर पर पसीना बहुत आता है, और इनके पाँव ठंडे रहते हैं जो कलकेरिया कार्ब के पेशेंट होते हैं। जायके में खटास होती है, ये इस मरीज की खास अलामतें होती हैं। फैटी लिवर में एक और मेडिसिन है जो मदर टिंचर में हम इस्तेमाल करवाते हैं, वो है कार्डोस मरियानस। कार्डोस मरियानस जो है वो जिगर का बेहतरीन टॉनिक भी है, खून में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक बेहतरीन दवाई भी है। ये जिगर में चर्बी और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है, जिगर की खराबियों को दूर करती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है क्रेटिगस। क्रेटिगस को भी आमतौर पर हम कहते हैं कि जी ये दिल के ताकत के लिए है, दिल के वाल को ठीक करने के लिए है, ब्लड प्रेशर लो है या हाई है तो उसको ठीक करने के लिए, ये मानी हुई बात है। ये वाकईतन इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ये जो क्रेटिगस है मदर टिंचर में इस्तेमाल करवाई जाए तो दिल के पट्ठों के लिए तो ये एक बेहतरीन टॉनिक है ही है, लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बेहतरीन दवाई है, और इसमें जो जिगर की चर्बी है उसको ये घोलने में बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। इसी तरीके से हमारे पास क्लेस्टोरिनम है। क्लेस्टोरिनम भी जिगर की बहुत अच्छी दवाई है, जिगर की चर्बी को ठीक करने के लिए, और ख़ास तौर पर अगर अंदरूनी दीवारों की खराबी है जिगर की तो उनको ठीक करती है, और ये जिगर के कैंसर के लिए भी बड़ी अच्छी दवाई है। और फिर इसके अलावा पित्ते की पथरी के लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। फेल्टोरी भी खून में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करती है, चर्बी को तहलील करती है, सफरा को पतला करके पखाने के जरिए खारिज कर देती है, और जिगर की खराबियां खत्म कर देती है, और ये भी पित्ते की पथरी की अच्छी दवाई है। इसी तरीके से नक्सवमीका है। नक्सवमीका खास तौर पर उन लोगों की मेडिसिन है जो नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और वो उनकी पेट की खराबियां मुश्किल रहती हैं, और हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और अल्कोहल का इस्तेमाल जिनका बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और इनमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है, पखाने की बार बार की हाजत होती है। इसके अलावा एक मेडिसिन है हमारे पास चैलिडोनियम। तो चैलिडोनियम भी जिगर की बेहतरीन मेडिसिन है। ये आमतौर पर फैटी लिवर के साथ जॉन्डिस जो पीला यरकान होता है वो अगर हो गया हुआ है तो उसमें ये दी जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। चैलिडोनियम पित्ते की पथरी की भी बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस भी फैटी लिवर के लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इस्तेमाल होती है,
खास तौर पर जिगर का सुखड़ जाना, लिवर सोराइसिस जो होता है, उसके लिए ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया जो है वो जिगर की चर्बी के लिए, जिगर के वर्म के लिए, जब इस कदर शदीद दर्द हो रहा हो जिगर को कि जिगर को पकड़ कर चलना पड़ता हो या जिगर को पकड़े रखता हो, तो उस वक्त जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और मर्कसाल जो है ये भी जिगर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और जब आखिरी हालतों में जब पेट में पानी पड़ जाए तो उस वक्त चाइना जो है वो जिगर की बड़ी अच्छी मेडिसिन है, जो पानी को भी कंट्रोल करती है। फिर इसके अलावा यह है कि जिगर की चर्बी को भी कंट्रोल करती है। और ये शदीद हालतों में जब मरीज आखिरी वक्त में जा रहा हो तो उस वक्त आमतौर पर सियानुथस और ये जो चाइना है ये बड़ा अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा डायस्कोरिया मदर टिंचर में ये जिगर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए और जिगर के बहुत सारे मसाइल, ख़ासतौर पर जिगर पर शदीद दर्द के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और हैपरसल्फ है, जिगर में जब पीप पड़ जाए तो उसके लिए, जिगर का इन्फेक्शन हो जाए, जिगर में वर्म हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो जिगर के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही हैं कि उनको दिया जाए तो फिर ही जो है वो काम करती हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि बस ये ना करें कि जी ये नुस्खा काबू आ गया है बस इसको दें और फैटी लिवर जो है वो ठीक हो जाएगा, बल्कि नुस्खे पर ना जाएं, पूरे उसके पेशेंट के सिम्टम्स लें। सिम्टम्स लेने के बाद, पूरी हिस्ट्री लेने के बाद, उसके सारे टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद जब आपको पता चले कि अगर उसके जिस्म में फैटी लिवर की वजह से कोई प्रॉब्लम कौन सा पैदा हो गया है तो साथ उस प्रॉब्लम की भी इलाज करें, तो फिर ही ये जो है ना आप होम्योपैथी के जरिए इसका इलाज कर सकते हैं। ये फैटी लिवर की बीमारी बाज़ दफ़ा अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए जितने भी पेशेंट फैटी लिवर के हैं उनको चाहिए कि मुज़र सेहत दवाएं जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करें। सब्ज़ पत्तों वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनको ज़्यादा खाएं और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ख़ास तौर पर जिन लोगों को फैटी लिवर में कोई साथ इन्फेक्शन भी है लिवर की, तो उसके लिए जो हल्दी है ये बहुत अच्छा इलाज है। इसी तरीके से जिस्म में एक गुड फैट होती है, एक बैड फैट होती है। तो गुड फैट को बढ़ाने के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छी चीज़ है, तो गुड फैट में इजाफा करने के लिए उसको इस्तेमाल करें। जिन लोगों को अभी जिगर की चर्बी का खतरा है कि वो मोटे हैं या सुस्त हैं उनका जिस्मानी, तो उनको ये चाहिए कि विटामिन सी का भरपूर इस्तेमाल करें, तुर्श फल ज़्यादा खाएं, सुबह को नहार मुँह कोशिश करें कि नीम गर्म पानी के अंदर लेमन को जो है निचोड़ के तो वो उसको पिएं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है उनके लिए। पानी की कमी भी जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करती है, जिसमें ख़ास तौर पर फैटी लिवर भी आता है, क्योंकि जब खून गाढ़ा हो जाता है तो फिर फैटी लिवर का भी मसला बनता है। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप 8 से 10 गिलास पानी तो लाजमी सर्दियों में भी पिएं और गर्मियों में इसकी मिकदार जो है और बढ़ा दें। जंक फूड जो हैं उनको कम इस्तेमाल करें और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीनी, सफ़ेद आटा, प्रोसेस्ड फूड, इन चीज़ों से परहेज़ करें और फलों के जूस पीने के बजाय फल खाएं। ख़ासतौर पर जो बवासीर के पेशेंट हैं उनको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो खाकर आप फैटी लिवर से बच सकते हैं। इसी तरह से जो लोगों का बीपी हाई रहता है या जिनका खून गाढ़ा है तो उनको नमक कम मिकदार में खाना चाहिए, चीनी कम मिकदार में खानी चाहिए, इससे भी फैटी लिवर होता है। चिप्स और बेकरी आइटम्स नहीं लेनी चाहिए, इन चीज़ों से वो परहेज़ करें तो इस तरीके से वो फैटी लिवर से बच सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि रोज़ाना मुनासिब वर्जिश को मामूल बनाएं और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं कि जिनके अंदर कम से कम जो है वो फैट हो। तो ये था फैटी लिवर और फैटी लिवर के मुख्तलिफ अलामात, सिम्टम्स और उसके डायग्नोजिंग और उसका जो है वो परहेज़ें कि हमें कौन कौन सी परहेज़ें करनी चाहिए। तो इन सारी परहेज़ों के साथ साथ होम्योपैथी की वो अद्वियात जिनके ज़रिए से हम फैटी लिवर और लिवर की दीगर बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में
ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।